cost benefit analysis, where we try to see how much investment we are doing and how much benefit we will get in terms of monetary benefits. This is very common in most of the projects. You will take your projects, your company will take are simply profit optimizing projects. Monetary benefits projects. They have taken another project because revenue has to come, because there is a revenue target, because the company has promised that they will grow by 10%, and this project will actually add to that objective, right? So you need to define that what kind of benefits you are expecting at the end of the project. That can be defined by investment. How much investment is there? By when it will come back? We will call it payback period. Now, how many years it will come back? We can say payback period. And how many months it will come back? We will call it payback period. So if I'm investing 100,000, and after 3 years I will get this 100,000 back as a profit, then I am at zero. No profit, no loss as of today, right? This is called reaching to like break-even period, right? Yeah. And that break-even period is called payback periods. But many times this may not be the right method of doing it, because depending on the project, some projects give value slowly. Some next year, some next to next year, some next to next year, and then 5 years, 10 years down the line. In such cases, we use net present value. Net present value is comparing the investment against the returns we are getting. But some returns are coming next year. Some returns are getting 2 years down the line. Some returns are coming 5 years down the line. How we will compare them? The value of the 5 crore coming 5 years down the line and 5 crore coming today are not same. Right? Yes. Correct? 5 crore in my hand today and 5 crore 5 years down the line is not same. Probably I just need 4 crore today, right? If I invest my 4 crore, they will become 5 crore in 5 years. Maybe only 3 crores. So if I have 3 crore, invest this into the project, and I get 5 crore 5 years down the line, that means the value of the 5 crore 5 years down the line is equivalent to 3 crore only. And that is called net present. That is called present value. So 5 crore 5 years down the line, what is the present value of that? Is 3 crore. तो अगर मैं 5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूं टुडे और 5 साल बाद 5 करोड़ मेरे को मिल रहे हैं, तो आज की डेट में तो वो 3 करोड़ के बराबर ही, मेरे को 2 करोड़ का लॉस है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं कुछ कह सकता हूं क्या? नहीं कह सकता, क्योंकि 5 साल अगर मैं इस 5 करोड़ को कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर देता तो मेरे तो 7-8 करोड़ हो जाते थे। मेरे तो 5 करोड़ ही है 5 साल, तो उसकी वैल्यू तो 3 करोड़ है। इसका मतलब कुछ और भी वैल्यू आनी चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं, जितने भी रिटर्न्स आते हैं बाद में 1 साल 2 साल 4 साल, उन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, सबको नेट कर देते हैं, प्लस माइनस इतना गया इतना आया, वी कॉल इट नेट प्रेजेंट वैल्यू। So net present value is a valid method of comparing the investment and the returns which are invested or getting returns at different time. Right? Similarly, there is an IRR, internal rate of return. So whatever net present value is there, if I take them together and identify at what percentage I am getting the return, then it is IRR. फॉर एग्जाम्पल होम लोन की बात कर लीजिए, जैसे आपने 50 लाख रुपीज ले लिया आज, राइट, एंड यू आर पेइंग लेट्स से 50,000 एवरी मंथ. what is how much return bank is getting? So bank doesn't do this. Bank says मेरे को 8% का IRR चाहिए, और इस आदमी ने 50 लाख का लोन लिया, तो 50 लाख 8% का IRR चाहिए, तो इसका EMI बना 60,000 पर मंथ.
तो मंथली रिटर्न्स जो बनाते हैं वो IRR बेस्ड होता है। तो जो होम लोन रेट होता है वो क्या होता है, बैंक के लिए IRR होता है। दैट इज द रिटर्न एट विच द बैंक इज गेटिंग हिज मनी बैक, राइट। एंड सिमिलरली हम कभी कभार प्रोजेक्ट को इस पे भी चेक करते हैं कि कस्टमर क्या बोलता है। तो नेट प्रमोटर स्कोर इज द स्कोर विच कस्टमर गिव टू द वेंडर। तो customer can give -100 to +100. Higher the value, more the chances that customer will recommend you to another customer. तो इस वैल्यू को भी हम कई बार एज ए बेनिफिट की तरह से लेते हैं, बिकॉज दिस इज नॉन टेंजिबल वैल्यू, इट बिल्ड रेपुटेशन इन द मार्केट. More people will be recommending you in the market. It's a referral thing which is called, considered to be the best kind of marketing. Right? So before I go, I will just give you some idea about it, and that probably looking a more logical time to break. So just give me a minute, let me bring it up. One minute. Okay. I just give you a little more understanding of this concept. Look at this. These are some examples. I made an investment of 10 lakhs. So it's a minus figure looking into the bracket and the red. So it's a minus figure. Return per year is 1,20,000, right? 10,000 every month you may be getting. So per year you will get 1,20,000. In how many days you had got the money? In 8.33 days. So what we call payback period is, so after 8.33 days, my return will be equivalent to 10 lakhs. So I call them as a payback period. So my payback period is 8.33. I can take a decision and I can track my project where I am getting the returns before 8.33 days, after 8.33 periods, or 8.33 on time, later or earlier. Right? ये equal sum आ रहा है हर महीने उसके लिए है, and then sometimes your returns are uneven. So in case of uneven, this is the return. You got cash flow in this. So you left with 10, then you get 13, you left with 27, then you get 16, left with 11, then you get 19, and you get it plus 8. So basically 3.58 days. Years mein ye complete. You get the full return. So payback period is 3.5 days in this case. Is this clear? Make sense? Concept of this is appearing okay? Payback period. इसमें क्या है? We haven't used the interest as such. Interest component simply understand करने के लिए interest component यूज, interest component अगर यूज करें तो ये 3.58 जो है वो कुछ भी 4 year या 4.5 year भी जा सकता है. Okay. Similarly, there is a net present value. इसमें interest component यूज किया है. So what you see here in net present value, हमने 14 लाख से कहानी शुरू की by investment, you know, investment. तो जीरो आज की डेट में, ये आज की डेट है, राइट? तो 14 लाख इन्वेस्ट किया तो आज की डेट में 14 लाख की वैल्यू 14 लाख है. देन नेक्स्ट ईयर वी गॉट दिस मच रिटर्न.
इनकी वैल्यू आज की टर्म में क्या हुआ, 9.91% हुआ, राइट। तो अगर ये 3,67,000 होता, तो अगर एक साल में वो 4,04,000 हो जाते थे, राइट। तो करंट प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी हुई, 3,67,000। सिमिलरली 2 इयर्स के बाद मेरे को ये अमाउंट मिला, इस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू है 6.68। थर्ड ईयर में मैंने 5 lakhs और इन्वेस्ट किए, सो विच इज इक्वलेंट टू 3.75 lakhs इन टूडेज टर्म, राइट। की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 75% ऑफ दिस। और 8 lakhs मेरे को वापस मिले, रिटर्न मिला, विच इज वैल्यू टू 6.7,000, राइट, 6,07,000। एंड सिमिलरली फोर्थ ईयर 5 lakhs, then 5 lakh this, and I calculated total. I invested 19, but in the present term only 17,75,657. टोटल रिटर्न कितना है, 36,39,000। बट आज की अगर मैं करेंट टर्म में बात करूं, अगर मैं उसका डिस्काउंटिंग रेट लेकर चलूं तो 26,98,000 होगी। सो टोटल रिटर्न कितना हुआ मेरा, 9,22,000 इन द प्रेजेंट टर्म, व्हाट ऑफ द फ्यूचर आउटकम्स और इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज माय नेट प्रेजेंट वैल्यू। इज इट मेक सेंस? गेटिंग कैलकुलेशन किस बेसिस पे चल, मींस व्हाट इज द ये मान इन्वेस्टमेंट? 10% का रिटर्न आएगा, ये 10% का रिटर्न है अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10% का डिस्काउंटिंग और इंटरेस्ट लिया है। तो क्योंकि फ्यूचर आउटकम पे कर रहे हैं तो हम डिस्काउंटिंग लेते हैं उसके लिए। अगर मैं आज कुछ लूंगा, कहूंगा 2 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, तो मैं उनको इंटरेस्ट कंपोनेंट मानूंगा। लेकिन मैं कहूंगा 2 साल के बाद इतना पैसा आने वाला, आज की टर्म में कितना बराबर हुआ, तो मैं उसको डिस्काउंटिंग बोलता। ओके। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है 10% के हिसाब से ईयर ऑन। वो फॉर्मूले लगाए क्या? 10% का, सिंपल 10% का। 10%। 10% का। आप इसको 10% कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। ये टिपिकली आपका मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। देखो मैंने 10% कर दिया तो ये एग्जैक्टली इतना होगा। आप अगर आज की डेट में अगर मेरे पास इतने होते तो ये इतने हो जाते मेरे पास 1 साल के बाद। लेकिन है इसका ये मतलब अगर मेरे पास 1 साल के बाद इतना पैसा है, इसका मतलब आज की डेट में मेरे पास इतना पैसा। तो आप कैसे अप्लाई करोगे ये फॉर्मूला, वो देखना है आपको आपके प्रोजेक्ट। हाँ, हमारे थॉट प्रोसेस से ये कैसे रन होगा ये व्हाट वो। तो आपका कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं, हाँ ये कर लें। आप अगर नया असेंबली लाइन सेटअप कर रहे हो या पूरी सेटअप आप बेच रहे हो ना, आपका बिजनेस वो लाइन है ना आपका, तो ऑटोमेशन के लिए। यस। तो आप अगर पूरी इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट अभी करोगे तो ये फर्स्ट लाइन है। अगर आप ये फर्स्ट लाइन के बाद रिटर्न्स आएंगे आपको, तो मतलब ये आपके कस्टमर के लिए दिखाना है। आप तो वेंडर हो, करेक्ट। आपके कस्टमर को बताना है कि आप 20 लाख स्पेंड करोगे तो आप उसका प्रोडक्शन वैल्यू जो भी है, रेवेन्यू जो जनरेट होगा, तो उसमें से कितना जनरेट होगा, तो वो वैल्यू दिखाओगे आप प्रेजेंट वैल्यू अप्लाई करके। तो साल में बीच में शायद थर्ड ईयर में आप बोलोगे कुछ अपग्रेड करना होगा, ऐसे वेंडर मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, वो भी उसने ले लिया वहां। तो 5 में उसका कॉस्ट है नहीं उसको, ठीक है। बट प्रेजेंट वैल्यू में कॉस्ट कितना हो रहा है, 17,75,000, बिकॉज वो 5 लाख तीसरे साल में करने वाले, आज नहीं कर रहा। 17,75,000 उसका टोटल कॉस्ट है। और उसकी टोटल रिटर्न कितने आ रहे हैं, ये एक्चुअल रिटर्न है 36 लाख, बट प्रेजेंट वैल्यू की हिसाब से, दिस इंक्लूड फ्यूचर वैल्यू ना। तो आज के दिन यू हैव टू कंपेयर एप्पल टू एप्पल। तो करंट टर्म में आज के दिन में क्या रिटर्न होगा, 26 लाख। तो आपके कस्टमर के लिए ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो ये अगर आप रेवेन्यू मानेंगे आई को और एफ को आप उसके कॉस्ट बनाएंगे या इन्वेस्टमेंट मानेंगे, तो दिस रिटर्न शुड बी हायर देन दैट इन्वेस्टमेंट। नहीं तो वो क्यों करेगा? बिजनेस वैल्यू टॉपिक बात हुई थी, शुड बी बिजनेस वैल्यू। Correct. Now you change this thing. Take the example of that housing loan which Vivek talked about. You all invested in a house, right? You said, well, let us take a loan. It is better than investing my own money. Why? First of all, there could not be, you don't have surplus funds, so you want to borrow money. Now, what is the calculation you will do? 15 years के बाद आपका current value जो भी apply करके
आपका उसका सेलेबल वैल्यू कितना है, and हम्म, that वो आप फैक्टर करोगे, उसका हम्म, भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, एंड देन यू फिगर आउट दैट सेलेबल वैल्यू इज हायर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ माय हाउस इन्वेस्टमेंट, यस, including my यस, borrowing, then you will say, oh, this is a good investment which we are. करेक्ट, 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 The assumption normally is what in as an investment in house property or asset you are creating, the value will improve, the value will increase. Like आप सब लोग पुणे मुंबई से, तो आपने तो देखा ही होगा पिछले 10 साल से कितना अच्छा अप्रिसिएशन हुआ है, given करेक्ट, exclude the COVID year, but after that it has picked up again now. So यस, this is what normally you do as a calculation. So ओके, एक एग्जांपल, दैट इज वन एग्जांपल। आपको बैंक क्यों लोन दे रहा है पता है आपको, वो भी सिमिलर मैथ कर, आज की आपकी टेक होम सैलरी आज कितनी है, 5 साल के कितने होंगे, कैन यू रीपे दैट लोन, ये सब वो देख रहा है। तो इवैल्यूएशन इज द ऑपोजिट। तो यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन हिज शू एंड फिगर आउट, वो डूबेगा नहीं, उसको भी तो देखना है ना, पैसा दे रहा है तो वो डूब रहा है कि नहीं, वो तो देखना है ना उसे भी, वो भी कैलकुलेशन। तो फॉर ऑल दिस कैलकुलेशन मेक्स सेंस। हाउ डू यू डू इट? ओके, सिमिलरली अगर आप इसको देखो IRR को, ये भी एक वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख का लोन लिया, फिर 10,000 एवरी मंथ दे रहे हैं, तो एक साल में 1,20,000 हो गया। यहां से दिया, 6वें साल में भी आपने 1,20,000 दिए, 5 लाख का और लोन ले लिया, टॉप लोन ले लिया, और फिर दिए जा रहे हैं आप। और आप कब तक जा रहे हैं? 33 ईयर्स तक। तो अगर 33 ईयर्स का टोटल वो पीरियड है आपका, क्या कहते हैं प्रोजेक्ट, क्या कहते हैं, तो बैंक को कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है? 8%। अब मान लीजिए RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो वो क्या करेगा? 8.25 कर देगा इसको। तो 8.25 कैसे आएगा? बाय इंक्रीजिंग योर EMI। हाउ इट विल बी? आई से 1 लाख 20 लेट्स से 22,000 probably something, करेक्ट, so 23,000 probably. So it will adjust your EMI by EMI, this. Either this way or increase the tenure. करेक्ट, Increase the tenure. So add some more here. So put here and include this into this. This, yeah. So at one point you can add some more. This is what it is. This is classically economics में बोला जाता है, instead of 37 in 4 more years, you will have this kind of thing. ये इकोनॉमिक्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो बोलता है, ये एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल वही है। आप रिवर्स लॉजिक, जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट करोगे स्टॉक्स में, तो यही एप्लीकेशन करोगे, एफडी में करोगे, म्यूचुअल फंड में करोगे, और सिमिलर कैलकुलेशन करोगे। सेम ये IRR समझ में आ गया पोजीशन। लॉजिक वही होता है। मंथली की स्कीम होती है ना, मंथली हर महीने में पैसे मिलते रहते हैं, तो वो वैसे ही है बिल्कुल। और ऐसे आपके प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया, अब प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, कुछ पैसा वापस आ रहा है, तो यू कैन सी कि अगर मैं अगले 20 साल, या अगर आप कहते 10 लाख पे मेरे को 2 लाख पर मंथ मिलेगा, तो आपका काम, आपका रिटर्न काफी अच्छा हो जाएगा। आपको अगर अगले 5 साल तक देखना है, तो 5 साल तक देखा जा सकता है इसमें कि भाई इतना रिटर्न आएगा मेरे को, इतना होगा। तो जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, या कोई नया कंपनी ये सब नया प्रोजेक्ट लेती है, भाई वहां पे एक नया प्लांट लगाना है, तो नया प्लांट लगाने का मतलब कितना इन्वेस्टमेंट और कितने दिन में उसका रिटर्न आ जाएगा। करेक्ट, दैट इज व्हाट इट डज। So sadly what happens is, in many large organizations, like all of you are part of big organizations, you have separate teams, bidding team, finance team, estimation team, तो वो लोग ये एक्सरसाइज करते हैं, तो आप लोग इन्वॉल्व नहीं होते। दैट इज द चैलेंज। आप इन्वॉल्व हो गए, आपको पता चलेगा ये सब मैच हुआ है, जिसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया है कि बिजनेस वैल्यू कितना हुआ है, क्या बिजनेस वैल्यू है, उस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट दिखाई दिया तभी उन्होंने लिया है, वो बात पता नहीं चल रहा आपको। तो एक आध बार पूछ लीजिए तो पता चल जाएगा, आपका स्पॉन्सर से बात करेंगे तो बता देंगे।
क्या है। और जनरली हम्म। इस ये जो होता है ना, ये आपकी या तो कोई डीपीआर बन रही होगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें ये मेंशन होगा ये सारी कैलकुलेशन, या फिर आपकी, या फिर कोई बिजनेस केस, या उसने कुछ बिजनेस रिपोर्ट बनाई होगी, उसका मतलब बिजनेस केस बनाया होगा, तो बिजनेस केस में ये सब चीजें जो है वो मेंशन होंगी। ओके। बट मेनी टाइम्स हम उसको पढ़ते नहीं है। नहीं, ये तो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, हमें तो फाइनेंस में कोई जाते ही नहीं है और जाने भी हाँ, नहीं देते। तो पता ही नहीं लगता अपने को कि हम पता ही नहीं क्या लगता। कर रहे हैं एक्चुअली, करेक्ट, हमें वाकई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रोजेक्ट का। करेक्ट, करेक्ट, खाली वी प्रोजेक्ट ही गेट ए कर रहे सरप्राइज एट द हैं। एंड ऑफ द डे, मैनेजमेंट से नहीं, इस प्लांट का तो कोई फायदा ही नहीं है, हमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा। अब करेक्ट। यूं सो कि पूरी मेहनत चली गई, दिन रात लगे रहे, और मैनेजमेंट बोल रहा है कि यार तो कि यार लॉस में जा रहा इसमें है तो प्रोजेक्ट। इतना। करेक्ट। So, from the first session, initially I thought two senior people, serious looking, how the sessions would be. But within 1 hour, my perception changed. It was a really fun and interactive session. Really enjoyed all the sessions. We never felt we are spending 3.5 hours after working for a whole day. Okay. It was really knowledge enriching in terms of knowledge and clearing concepts, and also we had fun of interacting with the whole team and getting best out of your knowledge. And then when on the first day when I joined this session, I was like, okay, let me just give a trial. एक बार देने में क्या जाता है? And really, the way you guys conduct, and it was so interactive. Even though like Bangalore traffic, we start very early morning, and then I just have to rush from office to नहीं ये तो miss नहीं होना चाहिए. So this is something very much motivating according to me. Yeah. So really, I enjoyed being in this part of this curriculum.